हाउ आर यू? हाय, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एंड टुडे हम उसका एक्सरसाइज देखने वाले 13.2। ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब क्या है, ये जो हमें दिए गए हैं, हमें ये जो टर्म्स दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और खास बात ये है कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है वो यूज करने हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट एग्जांपल, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to 8। सो which the formula will be used here? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स विद सेम बेस। ओके, सो व्हाट इज द सेम बेस हियर? 3 इज द बेस। we will write we will use the formula of multiplication. 3 will be the base. Again here the addition will be the exponent will be added. 2 plus 4 plus 8. So 2 plus 4 plus 8, 6 plus 8, 14. 3 raised to 14. Okay, this is the answer. Now question number second, 6 raised to 15 divided by 6 raised to 10. Again use the formula of division of powers with same base. What is the base here? The base is 6. Okay, so we will use the formula of division. 6 raised to 15 upon 6 raised to 10 is equal to 6 raised to 15 minus 10 is equal to 6 raised to 5. Okay, this is the answer. Now look at question number 3, a cube multiplied by a square. So use the formula again of the multiplication of powers with same base. What is the base here? The base is a, so the exponents will be added. So a raised to 3 plus 2. Okay, so 3 plus 2 means 5. So a raised to 5 will be the answer. Now the question number 4, 7 raised to x multiplied by 7 square. Here the bases are common and again the multiplication is there, so it will be the formula of multiplication of powers with same base. So 7 is the base, again the exponents will be added, x plus 2, so it can be not further added. Okay, so it will be the final answer. Now the question number 5, 5 square bracket raised to 3 divided by 5 cube. So यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया था डिवीजन ऑफ पावर्स विथ कॉमन बेस, मतलब सेम बेस। ओके, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. This was the formula. So simplify this using that formula. Okay, ये क्या आएगा? टेकिंग द पावर ऑफ पावर क्या था? a raised to m raised to n is equal to क्या था? a raised to m n. So use the formula of taking power of power here, and again then we will apply this formula to the next step. Okay, so taking the power of power मतलब 5 raised to 2 multiplied by 3 divided by 5 cube. क्या आएगा? 2 multiplied by 3 6. 5 raised to 6 divided by 5 cube. Okay, so use the formula first, apply it here. 5 raised to 6, sorry, 5 raised to 6 minus 5 raised to 6 minus, sorry again, 5 raised to 6 upon 5 cube is equal to 5 raised to 6 minus 3 is equal to 5 raised to 3. So this is the answer. Okay, now question number 6. Apply the formula of, here the condition is different than this. Okay, here the bases are different but the exponents are same, so we will use the formula of multiplication of powers with same exponent. What was the formula? a raised to m multiplied by b raised to m is equal to ab raised to m. So use the formula here. यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट है 5, ओके, और बेसिस कौन से है? 2 into 2 and 5. So we will apply this formula here. 2 multiplied by 5 bracket complete raised to 5. Okay, 5 2s are 10, 10 raised to 5. Now the question number 7, a raised to 4 into b raised to 4, and the question number 8. So here also the bases are different but the exponent are same, that is it will be the formula of multiplication of powers with common exponent. Yes, we will apply this formula here. So what are the bases? A and b. So take them in the bracket because our exponent is common. So
A multiplied by B, bracket common, exponent is 4. So it will be AB raised to 4. So this is the answer. Okay, question number 8. Taking the power of power. Use the second formula here. 3 raised to 4, bracket raised to 3. 3 raised to 4. 3 is the base. So a raised to mn, that is 3 raised to 4 multiplied by 3. Okay, 4 multiplied by 3, that is 12. So it will be 3 raised to 12. So this is the final answer. Now the question number 9. In the bracket 2 raised to 20 divided by 2 raised to 15, bracket complete. In the multiplication 2 cube. Okay, so use the formula first here, and then we will use the multiplication formula. So the multiplication formula is a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n. So we will use this formula here. So first 2 raised to 20 डिवाइडेड बाय 2 raised to 15, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट्स है इनका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. सो 2 raised to इन द ब्रैकेट 20 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब, क्या आएगा 20 माइनस 15 5. 2 raised to 5 multiplied by 2 cube. Again the bases are same but the exponent are different, so we will use the formula here. A raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to in the bracket m plus n. So 2 raised to 5 plus 3 is equal to 2 raised to 8. So this is the answer. Now the last question of this question number 1, that is 8 raised to t divided by 8 square. So we don't know the value of t, so we will use the formula here only. 8 raised to t divided by 8 square is equal to 8. 8 is the base, exponent t minus 2. So this is the answer of this final question. So we have completed question number 1. Now the question number 2, simplify and express in exponential form. ठीक है, मतलब इसका फाइनल आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तब तक हमें उसको सिंप्लीफाई करते जाना है. ठीक है. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं, लेकिन ये 4 ये 32 ये क्या है, प्रॉपर नंबर दिया है. ठीक है. देखिए यहाँ पे बेसिस दो प्रकार के हैं, एक है 2 एक है 3. सो इनको इस 4 को और इस 32 को हमें क्या करना होगा, अगर हमें हमारा फाइनल आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो ऑब्वियसली इन दो नंबर्स को भी हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. अगर 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें जबकि उसका प्राइम फैक्टर 2 है, और अगर 2 एज अ बेस हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. अगेन 32 can be converted in the exponential form where base is 2, so 32 is 2 raised to 5. ठीक है. अब तक आपको ये सारे नंबर समझ में आ जाने चाहिए. ठीक है. So friends, we will convert these two in these two forms. Okay, we will write them here. Okay, 2 cube multiplied by 3 raised to 4 multiplied by 2 square. Again in the division, ये जो 3 है ये कभी मत भूलना कि 3 जो अकेला है तो तब उसका एक्सपोनेंट 1 होता है. 3 raised to 1, ये जो 3 है ये 3 raised to 1 होता है, इसलिए ये खुद ही उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. ठीक है. सो दिस 3 raised to 1 multiplied by 32, that is 2 raised to 5. Okay. So friends, now bring the same terms together. Okay. 2 cube multiplied by 2 square multiplied by, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये कॉमन बेसिस हम साथ में लाएंगे. ये डिवीजन का इस तरह भी हो सकता है, इसलिए ब्रिंग द सेम टर्म टुगेदर. 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to 4 अपॉन 2 raised to 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to 1. ठीक है. अब हम इनको अलग अलग करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है और ये तीनों कॉमन है. ठीक है. सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स विद सेम बेस. मल्टीप्लीकेशन में है दोनों बेस सेम है, इसका मतलब क्या आएगा, 2 raised to 3 plus 2 अपॉन 2 raised to 5. ओके. इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये कॉमन है बेस, इसलिए 3 raised to 4 अपॉन 3 raised to 1. नाउ यहाँ पे हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. वी विल सिंप्लीफाई इट अगेन. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कीजिएगा. ठीक है. मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी. ठीक है. 2 raised to 3 plus 2 क्या आएगा, 2 raised to 5. ओके. उसके बाद यहाँ पे 2 raised to 5 will be as it is. ओके. सो इन द मल्टीप्लीकेशन 3 raised to 4 क्या आएगा, 3 raised to 4 अपॉन 3 raised to
1. Okay, use the formula of division of powers with same bases. Okay, these two are same base, these two are same base. Then put the formula here. 2 raised to 5 minus 5 multiplied by 3 raised to 4 minus 1. क्या आएगा? 2 raised to 0 multiplied by 3 raised to 3. ठीक है. Now look at here. This will be the 2 raised to 0 हमें पता होती है. कोई भी हमने फॉर्मूला देखा था इंट्रोडक्शन में, अगर कोई भी बेस हो जैसे कि उसको हम a कंसिडर करें और उसका एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. So this is we will apply this here also. So 2 raised to 0 क्या आएगा? 1. 1 multiplied by 3 cube is equal to 3 cube. So this is the final answer. Now the question number 2. In the bracket 5 square raised to 3 multiplied by 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. So here the condition is as like that is the taking power of power. हमने देखा था taking the power of power. So क्या था वो? a raised to m raised to n is equal to a raised to m n. ये था सेम, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. So 5 raised to 2 raised to 3 क्या आएगा? 5 raised to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. ओके, ये क्या आएगा? 5 raised to 6 multiplied by 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7. Okay, same basis. Apply the multiplication of powers with common base. 5 is the base, 6 plus 4 हो जाएगा. ठीक है. 5 raised to 6 plus 4 divided by 5 raised to 7 is equal to क्या आएगा? 5 raised to 6 plus 4 मतलब 6 10. 5 raised to 10 upon 5 raised to 7. Okay, now use the formula of division of powers with same base. 5 raised to in the bracket 10 minus 7 is equal to क्या आएगा? 5 raised to 3. Okay, this is the final answer of this question number 2. Now we will see question number 3. 25 raised to 4 divided by 5 cube. देखिए यहाँ पे 25 जो है ये 5 का मल्टीपल है, इसलिए 5 इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है. और जब हम उसका प्राइम फैक्टर 5 एज अ बेस लेंगे तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है. सो वी विल कन्वर्ट इट इन दी एक्सपोनेंशियल 5 वेयर द बेस इज 5. ओके, सो टेक द बेस एज अ 5. क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर है 25. 25 is equal to 5 square. So put this value in here. Okay, 5 square raised to 4 divided by 5 cube. Okay, taking the power of power, use the formula. 5 raised to 2 multiplied by 4 divided by 5 cube. क्या आ जाएगा? 5 raised to 4 into 2 8 divided by 5 cube is equal to, use the formula of division of powers with same base. 5 raised to 8 minus 3 क्या आएगा? is equal to 5 raised to 5. So this is the final value. Question number 4. 3 multiplied by 7 square multiplied by 11 raised to 8 upon 21 into 11 raised to 3. देखिए यहाँ पे है बेस, यहाँ पे ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगेन ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 3 is the proper number and 21 is the proper number. Okay, देखिए 21 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, लेकिन हम अगर 21 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ना तो हम उसका बेस 3 ले सकते हैं, ना ही हम उसका बेस 7 ले सकते हैं. क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर हम देखें, 3 का स्क्वायर है 9 और 3 का क्यूब है 27, तो इन दोनों के बीच में 21 आता है, तो हम उसको एज अ बेस 3 हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं ले सकते, और हम 7 भी उसका एज अ बेस हम नहीं ले सकते. ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 21 को हम 3 multiplied by 7 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 भी मिल जाएगा, जबकि 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, फिर ये 7 raised to 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 3 भी मिल जाएगा, जबकि 3 भी यहाँ 3 raised to 1 है और यहाँ पे 3 भी 3 raised to 1 है. सो हमें दो जोड़ी बनाने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, सो वी विल इसको हम स्प्लिट करेंगे. कैसे? 3 into 7. ठीक है. सो फ्रेंड्स, राइट इट लाइक दिस. 3 raised to 1 multiplied by 7 square multiplied by 11 raised to 8 is equal to 3 multiplied by 7
मल्टीप्लाइड बाय 11⁻3। देखिए यहाँ पे 3:1 है, 7 भी 7:1 है, ठीक है। सो दिस सेम टर्म्स वी विल ब्रिंग टुगेदर, ओके। 3:1 अपॉन 3:1 multiplied by 7 square upon 7:1 multiplied by 11:8 upon 11:3। ओके, नाउ यहाँ पे बेसेस कॉमन है, ठीक है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला डिवीजन ऑफ पावर्स विद सेम बेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3:1 minus 1 multiplied by 7:2 minus 1 multiplied by 11:8 minus 3। क्या आएगा, 3:1 minus 1 3:0 is multiplied by 7:2 minus 1 multiplied by 11:8 minus 3 5। सो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हमने देखा था, जब भी हमारा एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो 1 multiplied by 7 multiplied by 11:5 is equal to 7 multiplied by 11:5. So we will write it like this, okay. So this is the final answer here, 7 into 11:5, okay. Now we will move forward towards question number 5, 3:7 upon 3:4 multiplied by 3 cube। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों टर्म्स में बेस कॉमन है, सो बहुत इजी है। पहले तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3:7 सॉरी, इसको हम लिखेंगे 3:7 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3:4 प्लस 3। तो फिर ये क्या आएगा, 3:7 अपॉन 3:4 प्लस 3 7। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट भी सेम है, बेस भी सेम है, क्या आ जाएगा, फिर भी हमें डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। 3:7 minus 7 is equal to 3:0 is equal to 1। So this is the final value। Now to question number 6, 2:0 plus 3:0 plus 4:0। मैंने आपको बताया था, जब बेस a है कंसिडर किया है और रेस टू 0 है तो उसका फाइनल वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। So we will use it in these 3 examples, okay। So 2:0 क्या आएगा, 1, again 3:0 will be 1, again 4:0 will be 1। क्योंकि बेस चाहे जो भी हो, अगर उसके सर पर एक्सपोनेंट 0 है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। सो 1 + 1 + 1 मतलब 3। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगेन यूज दिस फॉर्मूला, 2:01 multiplied by 3:01 multiplied by 4:01 is equal to 1। Again, this is the final answer। Again, the question number 8, 3:0 plus 2:0 bracket complete multiplied by 5:0। क्या आएगा, 1 plus 1 multiplied by 1 क्या आएगा, 2 multiplied by 1 is equal to 2। So this is the final answer। So now question number 9, 2:8 multiplied by a⁵ upon 4 cube multiplied by a cube। सो फ्रेंड्स देखिए, इस एग्जाम्पल में थोड़ी अलग कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे बेस सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इन दोनों में से कोई भी बेस सेम करना पड़ेगा। या तो यहाँ पे हमें 2 लेना होगा या फिर यहाँ पे हमें 4 बनाना होगा, ठीक है। सो हमने देखा था पावर ऑफ पावर, टेकिंग द पावर ऑफ पावर्स का क्या फॉर्मूला था, a⁻m is equal to a⁻m(n)। सो अगर हम ये फॉर्मूला इसका बेस बनाने के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि इफ वी वांट टू bring the 4 as a base here, we will write it like this, 2:8 is equal to, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:2 that is 2 square raised to 4। मतलब क्या आ जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 4। जैसे कि 2 स्क्वायर मतलब 4, ये हो गया बेस और ये हो गया एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 बेस बनाना है तो हम इसको भी एज अ बेस 2 कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 क्यूब इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, 4 क्या होता है, 2 multiplied by 2 होता है और ब्रैकेट का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि जहाँ पे a क्यूब multiplied by b cube is equal to a multiplied by b cube।
इसका हम इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। माना कि यहाँ पे बेसिस सेम है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू क्या हो गया, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स की क्या होगा, एडिशन होगा। 3 + 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 6, ठीक है। लेकिन इससे आसान होगा आपको ये इसको यूज करना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बेस 4 लेंगे, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन अवर मेन एग्जाम्पल, ओके। सो यहाँ पे 4 बेस बनाना है, तो 4 कैसे आ जाएगा, 2 स्क्वायर रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 अपॉन 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। सो ब्रिंग द 4 हियर, 2 स्क्वायर की मतलब क्या, 4 रेज टू 4, ये आ गया 4, ये आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 अपॉन 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। सो स्प्लिट देम, 4 रेज टू 4 अपॉन 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 अपॉन a क्यूब। सो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिस हमें मिल गए हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स विद सेम बेस, ओके। सो क्या आएगा हमारा आंसर, इज इक्वल टू 4 रेज टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 5 माइनस 3। सो दिस इज अवर स्टेप। सो क्या आएगा यहाँ पे, 4 माइनस 3 1, 4 रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 2, क्या आएगा आंसर, 4a स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे बेस हमें a ही है, a के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। तो हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स विद सेम बेस, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a रेज टू 5 माइनस 3 ओके इन द मल्टीप्लिकेशन a रेज टू 8। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये तो हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बेस है सेम, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स विद सेम बेस, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या आएगा, a रेज टू 5 माइनस 3 a रेज टू 5 माइनस 3 प्लस 8, ओके। नाउ सॉल्व दिस, a रेज टू 5 माइनस 3 2 प्लस 8 10। So a raised to 10, this is the final value. The sub question 11, 4 raised to 5 multiplied by a raised to 8 b cube upon 4 raised to 5 multiplied by a raised to 5 b square. So देखिए यहाँ पे ये बेस कॉमन है, लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हम अलग अलग करेंगे, अब इसे अलग अलग करेंगे। 4 raised to 5 अपॉन 4 raised to 5 multiplied by a raised to 8 upon a raised to 5 मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, है ना। लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन तो ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन इसको भी हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल सिंप्लीफाई इट अगेन। ये क्या हो गया, यहाँ पे वो वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। सो सॉल्व इट, 4 रेज टू 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 4 रेज टू 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 8 माइनस 5 a raised to 8 minus 5 multiplied b raised to 3 minus 2. Okay, solve. 4 raised to 0 multiplied by a raised to 8 minus 5 multiplied by b raised to 3 minus 2. Sorry, directly लिख देंगे। 8 minus 5 क्या आएगा, 3 3 minus 2 क्या आएगा, 3 minus 2 आएगा 1 multiplied by b raised to 1, क्या आएगा आंसर, 1 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, 1 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a क्यूब b। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स विद सेम बेस। 2 क्यूब यहाँ पे 2 रेज टू 1 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 3 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे 2 रेज टू 1 था ना, इसलिए 3 प्लस 1 हो गया, तो 2 रेज टू क्या आएगा, 4 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होगा, टेकिंग द पावर a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m n। सो 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2
is equal to 2 raised to 8. So this is the final answer of this question. This is the exponential form. So here we have completed the question 2 of the exercise 13.2. ओके, तो इस आज के वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं. इसके बाद की वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बाय एंड टेक केयर.